नमस्कार, बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष सोनी के साथ आपके बीच एक बार फिर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। विषय महत्वपूर्ण जितना है उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो आपके समक्ष एक चैनल है वो मात्र एक न्यूज चैनल नहीं है जिसे न्यूज के लिए देखते हैं। खबरों की दुनिया में अपने आप में मिसाल बनाने वाला एक चैनल शिक्षाप्रद भी है। हम समय समय पर कई कार्यक्रमों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं जो छात्रों के लिए और आम जनमानस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षाप्रद कार्यक्रम में आप कई बार शिक्षा से जुड़ी हुई कई विषयों पर चर्चा देखते हैं। आम जनता के साथ जुड़कर हम कई मुद्दों पर बात करते हैं, अपने छात्र छात्राओं के साथ जुड़कर उनके विकास और सार्वभौमिक विकास की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक पैकेज है और ये एक पैकेज एक ऐसा चैनल है जिसे आप देखते रहें तो आप हर प्रकार से खुद का, अपने बच्चों का, अपने समाज का सर्वांगीण विकास कर सकेंगे। तो इसी बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आज हमारा विषय है महिला सशक्तिकरण, which is known as women empowerment. As you know that women have been given lot of freedom in our country. They have been given freedom by laws. They have been given freedom by our society. We have a good look towards them. They develop themselves. They are doing good in all fields of life, whether it be defense or civil life, in corporate world, as teachers, as engineers, as administrators. They have been a wonderful stuff in our country. But there is a problem. The problem comes here. Now the problem comes here means the problem of mindset, the problems of thinking. जहां एक तरफ हमारे समाज में प्रगतिशील वर्ग है जो अपनी सोच बदल रहा है समाज के साथ साथ, वहीं पे कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो आज भी उसी पारंपरिक सोच में हैं जो सोच आज से कई वर्ष पहले थी। फिर होता यह है कि हम उनके प्रति जो स्वभाव है समाज का वो एक गलत अपना लेते हैं और जब कोई घटना घटती है तो उस पर समाज, धर्म, राजनीति, जाति, इन सब चीजों को इतना शामिल कर देते हैं कि जिस पर यह घटना घटी है, जो विक्टिम है वो शायद किसी कोने में रोता रह जाता है, उसके परिवार रोता रह जाता है कि इन सब से अलग हटकर मुझे न्याय दे। लेकिन फिर न्याय किस बात का? इस बात पे आज चर्चा करेंगे इस डिबेट में, इस डिस्कशन में, जिसमें हम सब यहाँ मौजूद हैं। मूलतः हमारे साथ मनीष सोनी जी हैं, उसके बाद काजल हैं, फिर यशस्वी है और उसके बाद हरी है। So we start this whole discussion about women empowerment and how the change can be brought about with Manish Soni. So handing over the camera to Manish. Sir, as you mentioned that women empowerment is very necessary for our society, we know it. But sir, I think that women empowerment become a one-day wonder. Whenever any incident is there, whenever any happening is there, after that everybody is shouting that women empowerment should be there. There should be some strict law and regulation. There should be some, strict atmosphere should be there. Women should need some more power. Women should need some more, preference than others. Whenever any incidents happens, this kind of voice raised by different media houses, these kind of voice raised with different social groups, these kind of voice raised by different women's workers. But when there is no incidents, there is no accident, there is no voice. Everybody is silent. Everybody is satisfied with their atmosphere. Everybody is satisfied with their all paraphernalia. If we start working on that days when the Cold War is there, when there is no any incidents, no any accidents, then definitely there will be no accident, there will be no incidents. So I think we have to understand that we should not always be reactive people. Whenever anything happens, we start giving our reaction. But in between both accident, both incidents, there was no voice. There was no anybody don't need women empowerment.
एक्चुअली मनीष, व्हाट यू वांट टू से इज प्रीटी क्लियर, और मैं अपने जनता के साथ भी इसी प्रकार की मैं बातचीत करना चाहता हूं, अपने श्रोता को समझाना चाहता हूं, दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि हम वन डे वंडर हैं। इसका मतलब ये होता है कि ह्यूमन बीइंग्स हैव बिकम प्राइमरली रिएक्शनरी। जब कोई घटना घटती है तो फिर हम अपना रिएक्शन देते हैं। एक शब्द का जिक्र करता हूं मैं, जिंगोइज्म का मनीष, और जिंगोइज्म में बेसिकली कहते ये हैं कि हम पेट्रियोटिक नहीं है, यानी हम देशभक्त नहीं है, हम जिंगोइस्ट हैं। पेट्रियोटिक का मतलब होता है कि 365 दिन की देशभक्ति, जो कि नहीं है। हम देशभक्त होते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, कभी कभी 2 अक्टूबर और ऐसे किसी दिनों में, लेकिन जब कोई खतरा आता है हम पर तब हम जागते हैं। जागो मेरे वीर जवान और देश के लिए कुर्बान, ये जिंगोइज्म है। तो उसी तरह से क्या ऐसा हम मान सकते हैं कि आज की भारतीय जनता, बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़े लिखे वर्ग, जो जिंगोइस्ट एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, यानी जब कोई खतरा आता है तब हम जागते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, प्रोटेस्ट शो करते हैं, इसकी कोई मीनिंग है? ये मुझे नहीं समझ में आता। मनीष, एक बार फिर से पूछना चाहूंगा, ये जिंगोइज्म एम्पावरमेंट है, ये नारी सशक्तिकरण के नाम पे जिंगोइज्म है? बिल्कुल सर, दैट्स अ काइंड ऑफ अ जिंगोइज्म। व्हाटएवर यू हैव टोल्ड, इट्स अ वेरी ट्रू। हम लोग केवल जब भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच होता है तभी देशभक्ति जागती है, या 15 अगस्त 26 जनवरी को जागती है, या कभी कुछ ऐसा होता है किसी देश के साथ हमारे डिस्प्यूट जाग जाते हैं तब हमारी देशभक्ति जागती है। इन बिटवीन देयर वाज नो एनी पेट्रियोटिक, कोई भी देशभक्त नहीं होता, सब अपने आप में व्यस्त हैं। यही सब चीज वुमेन एम्पावरमेंट के साथ भी लागू होती है। दामनी केस हुआ, उसके बाद लोग जागते हैं। जीरो टॉलरेंस क्यों नहीं है हमारे देश में? हम जिस तरह से देश पे कोई खतरा आता है तो बिल्कुल कुछ सुनने को तैयार नहीं होते, उसी तरह से जब एक महिला पर किसी प्रकार का अपराध होता है तो हम क्यों नहीं जीरो टॉलरेंस को लेकर आगे बढ़ते हैं? बिल्कुल सर, पर मेरा कहना यह कि तैयारी रोज होनी चाहिए। प्रिपरेशन शुड बी एवरी डे। वुमेन को रोज एम्पावर करना चाहिए, उनकी शिक्षा पर रोज ध्यान देना चाहिए, उनके आत्मविश्वास पर, उनके घरेलू शिक्षा पे, उनको घर पे जो हम ज्ञान दे रहे हैं, वहां हम लोग का ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा, वहां हम लोग दबा के रखेंगे, वहां हम लोग उनको अपने पीछे, अपने बैकवर्ड पर्सन बना के रखेंगे, वहां हम लोग आगे नहीं लाते। तो ये एक मेंटल स्टिग्मा है, मेंटल एनिग्मा कह सकते हैं कि ये कभी वुमेन अपने आप को एम्पावर समझती नहीं। वो कहते हैं ना कि जिसको नहीं लगता कि वो राजा है, वो कभी राजा बन ही नहीं सकता। अगर वुमेन को नहीं लगता कि वो एम्पावर है ईच एंड एवरी मिनट, ईच एंड एवरी सेकंड, देन दे विल नेवर एवर बिकम। मनीष, हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और हम चलते हैं अपने इस डिबेटिंग टेबल पे, 2 बच्चियां भी हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो वुमेन एम्पावरमेंट को किस प्रकार से लेती है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? आप क्या समझते हो? आपको क्या सिखाया गया? यशस्वी, आई वुड लाइक टू स्विच ओवर टू यू फर्स्ट। Sir, what is my view on my women empowerment? What I am talking about today on women empowerment, you all have must hear. As I am talking about myself and my family, I have seen my parents are give me a more freedom. Right. But there is some peoples in my family, some women in my family, they won't be get educated. Education is a basic human right जो सबको मिलनी चाहिए। तो हम जब बाहर कोई केस होता है तब हम बोलते हैं, लेकिन हम घर पे ही हम लड़कियों के लिए उनको बोलते हैं कि आपको सिर्फ खाना बनाना और कुछ नहीं करना है। हम घर पे ही उनके लिए एक राइट तरीके से सही नहीं कर पाते, इसलिए हम उनको अच्छे से सिखा नहीं पाते, इसलिए विमेन एम्पावरमेंट नहीं है। और दिस इज नॉट अ न्यू टॉपिक, इट हैज बीन गोइंग फॉर अ सेंचुरी एंड आई डोंट नो हाउ दिस टॉपिक विल गो long continue because no one can talk about girls. Why? Because it is talking about a girls. Since childhood, girls has been criticized. Her living, her food, her dressing sense, even they cannot laugh more. क्यों? Because they wanted to be get married to the other house, and we are living in a world still we consider as a paraya dhan. हम स्लोगन्स देते हैं, भारत माता की जय, घर के लक्ष्मी, बट आज तक किसी ने भी उनको वो राइट दिया ही नहीं है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, बट तब भी nowadays we women inspired like a Rani Lakshmibai, we see Sarojini Naidu, and we inspire and we are living a good life
we are earned a great achievements like in sports, television, space, science, but still we are fighting for our equality, still we are fighting for our empowerment. And lastly, I would like to say that who believes that women are weak. So I wanted to tell them that women are not a weak, because it is a woman who gives a birth, who gives a new life, and it is a symbol of a strong woman. Very true. You know, Manish, the society revolves around because of women. The women work as a core of the society. Now, what she says is that we have been making strong progress in most of the fields, but still that kind of empowerment is missing out. You become everything, but still need men to support you. You are not free, and it has been dogmatically injected into their mind that there are certain do's and don'ts. My question is, do you think there is some lack in teaching? Definitely, sir. Whatever Yashasvi told, that just sake of saying something else and on practical life something else. हम लोग कहने के लिए तो बहुत बड़े बड़े बयान देते हैं, बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो उनको किस हद तक इम्प्लीमेंट करते हैं इसका अंदाजा लगाया तो ये इसका रेशियो काफी कम आएगा. We had made a film, sir, Khajuraho, right, and we have done research on ancient history and history, Chandela's history. There we find that women in center of all activities of society. There women work as a warrior. Women work as a sermonizer. Women work as a and the men part of the family. Women worship as a god. So I think that was real woman empowerment. But woman is the center of the society. But nowadays, just to showing off, to just showing off their daughter, their mother, their wife is center of attraction. But when the real practical life is come, there was no. ये बहुत महत्वपूर्ण बात अभी मनीष ने आपके समक्ष रखी. मैं इसको फिर से रखना चाहूंगा कि 10वीं 11वीं सदी में उन दिनों जिन दिनों चंदेलों का राज्य था और जिस समय 10वीं 11वीं सदी में एक नया समाज निर्मित हो रहा था, खजुराहो जैसे मंदिरों में जब आप शोध करते हो तो देखते हो कि हर पिलर्स पे महिलाएं हैं. लेकिन महिलाएं किस रूप में हैं? महिलाएं पत्नी के रूप में है, प्रेसी के रूप में है, माँ के रूप में है, देवी के रूप में है, योद्धा के रूप में है, सर्मनाइजर्स यानी प्रवचन देती हुई नजर आ रही हैं, बच्चों के साथ खेलती नजर आ रही हैं. यानी वुमेन के अलग अलग रूप वहां दिखाए गए. ये इस बात को प्रमाणित करता है कि महिला समाज का मुख्य अंग थी और उनके बगैर जीवन जीना संभव नहीं था. वो कोर में थी, वो अश्लीलता नहीं थी, वो कोर में थी, और ये था वुमेन एम्पावरमेंट. वहां से लेके चलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे. एक और हमारे इस टेबल पे मौजूद काजल से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हाउ डज काजल फील अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट. So I truly believe that she is right that about women empowerment. But I think that most of the family that I think that there are many restrictions about family only, that the parents only say that do not go out from the 9 o'clock, stay in the home, because they think girls are not that strong for our generation or other people. I think it's my experience is that I go in my colony that in small grocery shop that for taking something, and there are some men who work in local things. They look in a very shameful manner that I feel insecure about it, and totally in just a few seconds I went to my home and I feel I'm not good here. Okay. She says that it's very, very difficult because when she moves out of the house and she looks at the society, there are some people who have, bad look, evil look towards them, and that is one of the reasons why she feels. मुझे बड़ी आश्चर्य की बात होती है कि यही पुरुष समाज है जिसमें पुरुष है मनीष, और इसी समाज में पुरुष कहीं कहीं अपराधी भी हैं और कहीं कहीं सशक्त भी हैं. पिता के रूप में सशक्त हैं तो क्यों नहीं अपने बच्चियों को वो शक्ति प्रदान कर सकते हैं और उनकी सुरक्षा कर सकते हैं. और भाई के रूप में यदि इस कृत्य में शामिल हैं तो क्यों नहीं हम ये कहें कि बेटी बढ़ाओ पर बेटा पढ़ाओ.
क्यों नहीं हम बच्चों को, लड़कों को ये मॉरल एजुकेशन देते हैं कि राखी का वचन देने से पूर्व ये भी वचन दो कि हम इस तरह के कृत्य में कभी भी शामिल नहीं होंगे। या इस तरह का कृत्य सिर्फ कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता, किसी को बुरी निगाह से देखना भी इसी प्रकार का कृत्य होता है। तो क्यों ना हम ये एक शिक्षा पुरुषों के बीच में दी जानी चाहिए, यानी बॉयज शुड गेट मॉरल एजुकेशन। Sir, it's a very interesting point that we are always trying to teach girls. Girls. We don't Why not boys? concentrate boys who belongs from our family. They also need some moral education. It's very true. They are give promise to their sister. अपनी बहन को सर promise देते हैं उनकी रक्षा करने का, लेकिन जो बाहर जो लड़कियां घूमती हैं उनकी रक्षा क्या, उनको खुद जाके वो छेड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं सर ये जो आपने बात कही है कि घर से ही चैरिटी बिगिंस एट होम, कहीं ना कहीं अगर हम अपने घर के लड़कों को ही पढ़ाना शुरू करें, उनको ये मोरल एजुकेशन दें कि हर वीमेंस का रिस्पेक्ट करना आपका कर्तव्य है, हर महिला को सम्मान देना आपका कर्तव्य है। जिस दिन से सर ये सोच हर लड़के के दिमाग में आ जाएगी, हर पुरुष के दिमाग में आ जाएगी, कहीं ना कहीं सर वुमेन अपने आप एम्पावर हो जाएंगी और कहीं ना कहीं एक समाज एक अच्छी दिशा की तरफ बढ़ेगा। सो आई थिंक दैट व्हाट यू आर टेलिंग इट्स एब्सोल्युटली राइट। बहुत महत्वपूर्ण विषय के रूप में हम लोग मूव कर रहे हैं, जहां पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। व्हेन वी टॉक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एम्पावर मेंटली, फिजिकली, इवन इट्स इंपॉर्टेंट टू टीच द बॉयज ऑफ आवर हाउसेस। अपने घरों के लड़कों को सिखाना जरूरी है कि मॉरलिटी क्या है, मॉरल एजुकेशन क्या है। और इसलिए हमारे बीच में आज हरी मौजूद है। हरी से जानने की कोशिश करेंगे, बीइंग अ बॉय आप कैसा फील करते हैं इस विषय को लेकर। हरी। थैंक यू सर। सर, व्हेन वी से अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, सर आई थिंक सर वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया already is have, but sir some of places have, sir some of women are not secure, like sir we recently we have seen one incident which is happened in Kolkata, but sir same incident after one days also happened in UP. Sir, some persons has say to their sister and they raped their sister, but sir that boy has cut their head and he present in police station. सर सम ऑफ प्लेसेस सर बॉयज हैज सर बोथ बोलते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं सर, वन इज गुड एंड वन इज बैड। सर वन बॉय हु इज केयरिंग फॉर देयर सिस्टर एंड वन ऑफ हु इज बिकम एनिमल फॉर their some of sister also. Do you not think that it is a kind of a male chauvinism these days that a single boy has different characters? Sometimes he behaves like a husband, sometimes he behaves like a father, sometimes he behaves like a brother, and sometimes when it comes to the other girl he behaves in a very bad fashion. So do you not think the training should begin from home? घर में ये ट्रेनिंग की शुरुआत होनी चाहिए और पहला तमाचा बाप द्वारा या माँ द्वारा उस लड़के पे पड़ना चाहिए जो निरुद्देश्य बिना किसी कारण के अपनी गाड़ी को निकाल के बाहर जा रहा है घूमने। So do you not think from there this teaching begins, and it's very very strict? हो सकता है कि ये चीजें कुछ लोगों को ना पसंद आए, लेकिन बात सही है कि मॉरल लेसन के पीछे छड़ी जरूरी होती है, फियर जरूरी होता है। जिस दिन आपके अंदर फियर आ जाता है ये मॉरल लेसन भी आ जाता है, डर आता है तो आप हर प्रकार से उस चीज को लेकर कटिबद्ध होते हो कि नहीं ये काम करना है। ये डूज एंड डोंट्स घर से शुरू होना चाहिए या नहीं? यस सर, सर इट इज स्टार्ट फ्रॉम होम एंड सर it is very necessary for learn those boys who are and those parents also who teach their kids and their child, and sir who wonder sir there and where sir firstly sir they should learn, and sir in our India has so several rules for controlling that thing, but they are not educated. So firstly sir they should also educated, and so they should know their rights. Women should know their rights also. इसी विषय पर कुछ और बातें करने के लिए हमारे कुछ छात्र दमोह से बाहर से जुड़े हुए हैं और वो कुछ बातचीत करना चाहते हैं। तो चलिए हम सुनते हैं कनक खरे को। So I want to tell about the women empowerment and what is the reason behind this. Then first I mention that people says that women have no right. Women have not their fundamental rights. But it is totally wrong. Who says that women have no right? Who says that they cannot go anywhere? Who says that women can do not anything?
women can do anything. At this time, women is above than man. We have an example for president and finance minister and in UPSC, IAS officers in judiciary. Or we have also example in business that at this time women also become a businesswoman. So we have a many example of women, and women also do very well in their field. But the reason behind this that they don't have their fundamental rights, it is totally wrong. Because women have all fundamental rights. Our constitution gives fundamental rights, and in many houses girls parents also give their whole fundamental rights. इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ छात्र छात्राएं बाहर से जुड़े हुए हैं. दे वांट टू स्पीक समथिंग ऑन दिस टॉपिक. चलिए सुनते हैं कंचन खरे को. The only reason is the social thinking of the pupil. If we change the social thinking of the pupil, then we can absolutely gain the right women empowerment. Because most of the pupils thinks today that women do not need to go to schools. They get early marriages, they get child marriages, and there are so many things which they do with the women. But women have fundamental rights. Our constitution gives all the fundamental rights to women. Women get reservations, women do jobs, women participate in all the things. We can see that in Lok Sabha, in Raj Sabha, President Draupadi Murmu, and in the parliament and in the also in ministers, Nirmala Sitharaman also is also a minister. So why people says that women should not have fundamental rights? Women have all the fundamental rights. But the main reason behind this is the social thinking of the people. If we change the social thinking of the people, then we can absolutely gain the right women empowerment, because the social thinking is the main issue. Social thinking is not only the main issue in such a way that they get early marriages. It is a thinking of the society that women do not need to go to anywhere. It is a thinking of the society, and if we change this thinking, then we can absolutely get women empowerment in the right way. Thank you, sir. हमारे बीच आज एक छात्र बाहर से जुड़ा है, and who is very much a part of this whole debate and topic. Or let's switch over to him and see what he speaks online. He is Arunesh. If each and every woman have a rights, so I want to mention one fact to showing that this thing, 48% of the women is engaged in a sector of the education and these type of fields, but where is the 52% of the women? This is happening because of the lack of the women empowerment. And if the women don't have an equal opportunity as a man, the woman can work as a equally as a man, or maybe in a better way as compared to the man. If we give the equal rights to the women, they can work much and much better as compared to the men. And the men, as we all know, that the men cannot play these type of roles, where the woman can play the role of the mother, can play the role of the sister, can play many types of roles, but they don't have much rights. We have another person joining us today online, since she is not around. She is a part of our debate. Let's hear Nishita Jain. If we can say about women empowerment, so women empowerment is very necessary in this time, because in this time very more cases and murders are going on with the girls and women. And if we can say about women empowerment, so women empowerment all refer to the empowerment of women to take all decisions from their choices, and so that
that she can take all the decisions for her social and economic development. And we can say about women empowerment. In this time, I saw that women are very perfect for her work, and they do all works in any areas, and they do anything if women are educated. And I think in ancient time pupils are not support women because they do not know that women's education is very important. And in ancient time women are not more educated, but in this time I saw that women are more educated and they do work in any field. Women should be given equal rights like men to empower them, and they should not be treated as the weak gender of the society, as they occupy almost half the country population. So they are half the population country stands, and women have more patience and effort, and they can better develop their country. And I think people always support women because I think women do anything if people always support her and always do proper education. And in this time I think people always support women, and I think women empowerment is very necessary in this time, and women empowerment play an important role in our society. Thank you all of you. मनीष, मैं जब छोटा था तो एक शिक्षक ने मुझे सिखाया था कि याद रखना कि हर घर में बहन भी हैं और भाई भी हैं, और भाई को याद रखना चाहिए कि जिस समय वह सड़क पर किसी को छेड़ने की कोशिश कर रहा है या किसी पर रिमार्क कर रहा है या गलत तरीके से निगाह डाल रहा है, उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि उसी वक्त उसकी बहन भी कहीं पढ़ रही होगी और कहीं सड़क पे होगी वो, और वो सेम चीज किसी और द्वारा ये किया जा रहा होगा। तो ये इस चीज को याद रखना है, यानी ये टीचिंग यदि हम देना शुरू करें नियम कानून अपनी जगह है, नियम कानून पहुंचाए जाते हैं, पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, किताबों में होते हैं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, उसकी सजा के बारे में, उस अपराध की श्रेणी के बारे में वो अलग प्रकार से पढ़ाया जाता है, वो अलग बात है। लेकिन एक मॉरल टीचिंग की ये नहीं करना है, इस करने के बाद या इस तरह की हरकतों के बाद बहुत बड़ी सजा होती है। कुछ घर से परिवर्तन पे आप प्रकाश डालोगे? बिल्कुल सर, जो आपने सर कानून की और बात की है, सजा की बात की है, मुझे लगता है कि भारत में जो कानून बने हैं सर पर्याप्त हैं। जो अभी जो कानून जो लागू किए गए, पॉक्सो एक्ट है, इसके अलावा महिलाओं के संरक्षण के लिए उनके अधिकारों के जो भी कानून बने हैं, सजा बनी है, वो पर्याप्त है सर। हम लोग का जो वर्तमान में जो चाहे वो मीडिया हाउस हो, चाहे जो महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले ग्रुप्स हैं, उनका टोटल कंसंट्रेशन होता है लॉ की तरफ कि कानून और सख्त। अब कितना सख्त करोगे, किसी को 2 बार फांसी तो दे नहीं दोगे, तो वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो जिस विषय पे आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, मॉरल एजुकेशन, यहाँ बहुत वर्क करने का है सर, ह्यूज स्पेस फॉर वर्कआउट। अगर लिटरली इसके लिए अभियान चलाया जाए, लिटरली अगर इस पे कुछ डिबेट्स हो, इस पे कुछ सोशल वर्क हो, तो लिटरली हमारा समाज बहुत हद तक सुधर सकता है। कहीं ना कहीं हमें भी अपने एंशिएंट से जुड़ने की आवश्यकता है, हमें अपने इतिहास से जुड़ने की आवश्यकता है, हमें अपने पूर्वजों से सीखने की आवश्यकता है कि किस तरह से हम लोग नारी को पूजते थे, यत् नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहीं ना कहीं ये जो मोरल एजुकेशन है, इट्स वेरी नेसेसरी टू ईच एंड एवरी पर्सन। एंड रिमेंबर वन थिंग, मैं बार बार यही कहता हूँ कि स्कूल में एक बच्चा जितना समय निकालता है, उससे कहीं ज्यादा समय वो अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ गुजारता है। अगर वहां से उनकी एजुकेशन शुरू हो जाएगी, वहां से उनकी मोरल एजुकेशन शुरू हो जाएगी, देन देयर विल बी ह्यूज चेंजेस वी विल फाइंड आफ्टरवर्ड्स। काजल, आपने अपने स्कूल की शिक्षा के दौरान जब तक आपने प्राप्त की, आपने मॉरल साइंस या मॉरल एजुकेशन नाम की क्या चीज ग्रहण की? सिलेबस के रूप में आप बताएं। So I don't think there was a chapter. No, sir. There was a paper. Sir, there was no paper. There was subject. There was only moral science subject. Their story were told that
how people do this or something. It's very normal, half an hour period. It's not this big thing about. Do you remember anything about the lessons that you learned in the class of moral education? So I know that in Independence there were many performance about that morality, about that how. But on a regular basis teaching? No, sir. There was no. Yashasvi, do you remember any of such teachings or a subject of moral education in your school and college? Sir, there is lots of such type of teaching in school, but no one can apply on ourselves. No one can. In moral science हम chapter पढ़ते हैं equality, but no one can do equality. मैं एक incident share करना चाहूँगी. मेरी class, I have my friend. She got period in her class when we was in 8th class, and whole class like boys are very बहुत ज़्यादा उसको criticize कर रहे थे, and she was crying that time, and teachers are saying just बाहर जाइए, no one can, and वो उसी को चिल्ला रही थी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था. She was his first period that time. And what it's very what you heard is when we go to the medical, हमें जब सैनिटरी पैड्स दिए जाते हैं, हमें ब्लैक पॉलिथीन में पैक करके दिए जाते हैं, और अगर साइड में एक लड़का खड़ा तो वो हंसता है हम पे. You see, this is happening in our society, and this is coming from the girl who was a witness. Now, the same issue, I remember I made a film called Kuhu. अभी हमने एक फिल्म बनाई कुहू इसी विषय को लेकर कि किस प्रकार से बच्चियों को मॉरली बहुत डाउन फील करना पड़ता है, लॉस ऑफ फेस फील करना पड़ता है जब वो बच्चियां स्कूल में होती हैं और अपने मैच्योरिटी के स्टेज पर एंटर करती हैं. क्या हम ये टीचिंग, ये मोरल टीचिंग नहीं दे सकते? क्या हम बच्चों को ये बता नहीं सकते? कुछ ऐसी मॉरल टीचिंग है जो किताबों से बाहर निकालकर निजी जीवन में लाने की है, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये सारी टीचिंग्स यदि हम आज लड़कों को देंगे क्लास में टीचर्स के द्वारा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. याद रखें, हमारा प्रोफेशन जो है वो एक एथिक्स है, वो एक मॉरल एथिक्स है. हमारा कोई भी प्रोफेशन हो, उस प्रोफेशन को एक मॉरल एथिक्स के रूप में हम अपनाएंगे तो हम शायद अच्छी चीजें बच्चों को दे पाएंगे. Manish, it's a very very important thing which Yashasvi discussed, and we have mentioned this issue in our film which got so many awards also. ये सारे, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी टीम द्वारा जो फिल्म बनाई जाती है वो है मीनिंगफुल सिनेमा, अर्थपूर्ण सिनेमा, जिसके अर्थ होते हैं, जिसके कोई बहुत मीनिंग होती है हमारी सोसाइटी में. मनीष, what would you like? It would be your last comment. Sir, whatever Yashasvi have told, she mentioned about the character of all classes. There's very immature students, whether boys and girls. Whatever reaction they have done, maybe it will be it would be tolerable. But the reaction of teacher was very bad, sir. Very bad. It can't tolerable, sir. जो टीचर का रिएक्शन था वो सबसे खराब था, क्योंकि teachers have responsibility to teach all students that what is the situation and how to handle such situations. Yes. And they can punish same time these boys. Yes. They will never react this kind of things. Right. Teachers should support that girl. That whatever situation you are in, we are here. In south of our country, the first onset of a period is celebrated. इसको celebrate करते हैं. Celebrated as adulthood. Celebration, and here we are demeaning. हम उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. बिल्कुल, ये एक मूलभूत बदलाव है सर जो हमारी सोसाइटी में जरूरी है. इस पे कोई ध्यान नहीं देता, इस पे कोई राजनीति नहीं होती. और मैं सबसे बड़ा एक मीडिया पर्सन होने के नाते सबसे बड़ा आरोप लगाता हूं, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, जितने बड़े बड़े एंकर चिल्लाते हैं जो मीडिया में खड़े होके, इनकी कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमारे समाज को टीच करें. ये सिर्फ अपना जेब भरते हैं, अपना घर भरते हैं और एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं. इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनका बहिष्कार होना चाहिए. आज हमने बातचीत की एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे, और वो विषय था वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण. कई पहलुओं पे चर्चा की हमने, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू निकल के आया वो पहलू ये था कि क्या आप तैयार हैं? क्या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या आपने इन सारी समस्याओं को एक नए तरीके से सोचने और समझने की क्षमता है, या सिर्फ आपका उद्देश्य है इन मसलों का होना और उन मसलों पे बेतुकी बातें फेसबुक व्हाट्सएप पे लिखना?
और वो भी किस रूप में? कभी किसी जाति को लेकर, कभी किसी धर्म को लेकर, कभी किसी संप्रदाय को लेकर, कभी किसी क्षेत्र को लेकर, कभी किसी भाषा को लेकर, और कभी किसी राजनीति को लेकर। इन सब से उठकर हमें यह सोचना है कि हम अपने इस समाज को बेहतर कैसे बना सके। लेकिन समाज को बेहतर सीख देकर नहीं, सीख लेकर बनाना है। किसी और को सुधारने के बजाय स्वयं को सुधारना है। आप एक टीचर हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक मीडिया पर्सन से संबंधित हैं, आप एक अधिकारी हैं, आप प्रशासनिक सेवक हैं, आप कुछ भी हैं, आप माँ हैं, बाप हैं। आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है कि कितने लोगों को आप कवर कर सकते हैं इस न्याय के प्रति। तो क्यों ना परिवर्तन शुरू करें आज से ही। कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ये चैरिटी हम शुरू करते हैं आज अपने चैनल के माध्यम से, और इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस के माध्यम से जब हम ये शुरू करते हैं तो ये आह्वान करते हैं कि कोशिश करें स्वयं को बदलें और स्वयं का नजरिया बदलें। हम उन्हें ताकत भी प्रदान करें और स्वयं भी सशक्त हों। हम बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ भी करें और बेटा पढ़ाओ भी बात करें, उन्हें भी समझाइश दें और समझाएं। So we are going to close this discussion out here. It was very good discussion with the team. I would like to invite you for the discussions. Come and join us and be a part of this wealthy discussion. Thank you very much.